Hello students, so here we are with the solutions of JEE Main Test 61 from NTA Abhyas app. Students, this paper is relatively easy as compared to the previously uploaded papers. ठीक है, लास्ट दो तीन पेपर्स अपन देखें तो रिलेटिवली इजी थे, बट दिस वन इज फर्दर easier. Overall analysis, if we see, we have basically four tough questions, four good questions in this paper. Just question number 4, 9, 16 and 22. The rest questions are either average or easy category. मैंने mainly tough questions mark किए हैं ताकि आप इन चीजों पे, इनके concepts पे focus कर सकें. Overall level, if we rate, it is an easy paper in which a good score will be 65 plus. Anything above 65 will be taken as a good score, and for students who are doing very good in these papers, the very good score will be considered as 85 or more than that. All right, straight away moving towards the discussion part. The first question, right? So as usual, हम लोग most of the times first question Bohr's theory का या atoms का ही मिल रहा है. According to the Bohr's theory, the minimum energy required to remove an electron from the ground state of a doubly ionized lithium atom. All right, fine. तो simple question है, अगर अपन energy देखें किसी nth orbit में, the energy of that electron, it is minus 13.6 z square by n square. अब यहाँ पे since बात हो रही है about doubly ionized lithium atom, तो this is minus 13.6, z का वैल्यू विल प्लेस 3, तो इट इज 9, n का वैल्यू 1 आ जाएगा बिकॉज इट इज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ n का वैल्यू 1 है, तो दैट मेक्स इट माइनस 122.4. इतना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में होगा और इतना ही एनर्जी उसको हमें देना पड़ेगा टू रिमूव इट फ्रॉम दैट स्टेट. सो इट इज 122.4. सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Alright, fine. The next question, two blocks A and B of equal mass are released on two sides of a fixed wedge. We need to find the acceleration of center of mass. Right, now since center of mass का acceleration निकालना है, geometry अगर मैं देखूं तो यहाँ पे this angle will be 90 degree of course. Since ये release किया अपन ने, friction zero है, neglect friction, तो ये जो block होगा it will accelerate downwards with an acceleration g sin theta, g sin 45. Right, तो इसका acceleration जो है that is g by root 2. And in the same way, iska acceleration down the incline will also be the same, g by root 2. Now ACM, since the accelerations are not along the same line, we'll write ACM as m1 a1 vector plus m2 a2 vector upon m1 plus m2. Now since mass are equal, तो ये मास सबकी जगह मैं m प्लेस करूंगा, तो आपका ACM वेक्टर यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर अपॉन 2. नाउ यहाँ पे यू कैन नॉट जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एज g बाय रूट 2 बिकॉज ये दोनों g साइन थीटा g बाय रूट 2 जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है. तो ये इस तरह का कुछ सिनारियो आ रहा है कि दिस वी हैव g बाय रूट 2 हियर, ये g बाय रूट 2 यहाँ पे है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. तो इधर अगर मुझे ACM का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट विल बी ऑफ कोर्स द रिजल्टेंट ऑफ A1 एंड A2. तो ये A1 प्लस A2 मॉड अपॉन 2. नाउ दिस इज G बाय रूट 2 एंड G बाय रूट 2 एट 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट जो आएगा इक्वल वेक्टर्स एट 90 डिग्री, इट इज रूट 2 टाइम्स G बाय रूट 2 अपॉन 2. ये जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 से मैंने निकाला है, तो आपका नेट एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो g बाई 2 होगा. एंड सिंस ये इक्वल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा वो बाइसेक्टर के अलोंग होगा डाउनवर्ड्स, तो आपका रिजल्टेंट इट इज g बाय 2 डाउनवर्ड्स. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, बस यहाँ वेक्टर रिजल्टेंट से आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा. राइट, तो अगेन एन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ नेग्लिजिबल ब्रेड्थ एंड थिकनेस कंपेयर टू इट्स लेंथ. थिकनेस जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में ये सब नेग्लिजिबल है. ऑसिलेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद पीरियड t. The period of oscillation of each part obtained on breaking the magnet, right? तो routine question है कि it is let's say इसको break करना है perpendicular to its length. ये अपन ने अगर बार मैग्नेट कंसिडर किया और इस तरह के बार मैग्नेट में perpendicular to its length ऐसे ब्रेक किया, तो we know that the time period, the formula for time period of oscillation is 2 pi under root I upon mu b. ठीक है, is 2 pi under root I upon mu b, where mu is the magnetic moment of course. Now moment of inertia, ऐसे रॉड का moment of inertia हम लेंगे ml square by 12. Now the question says कि इसको n parts में अगर ब्रेक किया है तो मास जो होगा वो 1 by n टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, मास 1 by n टाइम्स होगा. और ऐसे लेंथ ऑफ ईच पार्ट ये अपन देखेंगे तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट वो भी l by n होगा. तो मास वाले में m by n फैक्टर आ रहा है, लेंथ में l by n आ रहा है,
तो ये वैल्यू जो आएगा दैट विल बी आई नॉट बाय एन क्यूब, ठीक है, ये एन क्यूब का फैक्टर आया। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट में अपन देखें तो द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, एक पार्ट का जो लेंथ है वो एल नॉट बाय एन हो गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो म्यू नॉट बाय एन हो जाएगा, वो भी 1 बाय एन टाइम्स हुआ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 बाय एन क्यूब टाइम्स हुआ। ये दोनों चीजें यहां पे अपन सब्स्टिट्यूट करें, आई इज आई नॉट अपॉन एन क्यूब और म्यू जो है वो म्यू नॉट अपॉन एन होगा, तो आपका ओवरऑल टाइम पीरियड पे जो इफेक्ट आएगा दैट टी डैश इट विल बी टी नॉट अपॉन एन। तो अगर इसको पैरेलल टू इट्स लेंथ हम ब्रेक करते तो एक अलग सिनेरियो होता, वो उसमें टाइम पीरियड सेम रहता है इफ यू कैन रिकॉल, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज है, मैग्नेटिक मोमेंट में भी चेंज आया है, एंड अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड आपका टी नॉट बाय एन टी बाय एन आ जाएगा, ऑप्शन बी। सो अगेन रूटीन क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। राइट, सो क्वेश्चन 4 जैसा मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टू सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स विद इक्वल क्रॉस सेक्शंस एंड डिफरेंट रेजिस्टिविटीज आर पुट एंड टू एंड। राइट, तो ये मैंने दो कंडक्टर्स एंड टू एंड इस तरह से प्लेस किए, ये एंड टू एंड अपन ने यहां पे इनको प्लेस कर दिया, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटीज दे रखी है। फाइंड द चार्ज एट द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर्स इफ अ करंट आई फ्लोज फ्रॉम वन कंडक्टर टू द सेकेंड। राइट, तो अब इस सिचुएशन में अगर एक से दूसरे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और मुझे बाउंड्री पर चार्ज निकालना है, तो यहां अगर मैं एक बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल सिलेंडर कंसिडर कर लूं, ठीक है, इस तरह का एक सिलेंडर अगर मैं कंसिडर कर लूं, राइट, एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज रिलेटेड विथ योर करंट डेंसिटी एज E इज इक्वल्स टू रो टाइम्स J, तो E और J जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो सिलेंडर हमने बनाया है इसको अगर अपन अलग से ड्रॉ कर लें, ये सिलेंडर जो अपन ने बनाया है इसको एनलार्ज करके थोड़ा इमेजिन करें, तो इस वाली जगह पे लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 बिकॉज दिस इज कंडक्टर नंबर 2, ये कंडक्टर नंबर 1 है, और इस वाली जगह पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, ठीक है। देन एरिया वेक्टर्स देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और यहां जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर अपन एरिया वेक्टर्स निकाल रहे हैं इस सिलेंडर में, तो यहां पे ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स राइट और इस वाले का इस एरिया वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अब हम इस सिलेंडर में से जाने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो वी नो दैट टोटल फ्लक्स जो होगा, ये जो फ्लक्स आएगा दिस E और A में 0 डिग्री एंगल है, तो दैट फ्लक्स विल बी E A cos 0, तो इट इज E2A, और ये जो फ्लक्स आएगा इट विल बी E A cos 180, तो इट विल बी माइनस E1A। तो आपका नेट फ्लक्स जो आ रहा है दैट इज E2 माइनस E1 टाइम्स A, दैट इज द नेट फ्लक्स। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर वी कैन सी इट इज रिटन एज रो टाइम्स J। तो E2 को मैंने लिखा, रो तो कॉमन आ जाएगा, E2 को मैंने लिखा रो टाइम्स J2 माइनस E1 को लिखा अपन ने रो टाइम्स J1। सॉरी, इसमें रेजिस्टिविटीज जो है वो अलग अलग हैं, तो ये मैंने गलत लिख दिया, राइट, रेजिस्टिविटीज इनकी अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से और J जो होगा करंट डेंसिटी ऑफ कोर्स इज कॉमन बिकॉज करंट पूरे में एक ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे का एक है, तो करंट डेंसिटी जो आएगा दैट विल बी I अपॉन पाई आर स्क्वायर, वो कॉमन है। तो E2 को मैंने लिखा इट इज रो 2J माइनस रो 1J, और J जो है वो इस के बाहर चला गया। अच्छा, दिस फ्लक्स वी नो इट इज इक्वेटेड विद Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्दर J इनटू A जो है ये, दैट J वी नो दैट करंट डेंसिटी इज I अपॉन A, तो J इनटू A जो होगा वो करंट बन जाएगा। तो इफेक्टिवली दिस Q एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1, J इंटू A को मैं लिख रहा हूं करंट, और ये एप्सिलॉन नॉट उधर मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इट्स रो 2 माइनस रो 1 इंटू I टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, दिस गिव्स यू ऑप्शन A। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, मेनली यहाँ पे थॉट आना चाहिए कि ये गॉस थ्योरम से बाउंड्री पे मुझे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेके गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, वो थॉट यहाँ पे क्रूशियल है। उस थॉट के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग इजी था, बट वो थॉट का डेफिनेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ रेजिस्टेंस R मूव्स यूनिफॉर्मली विद अ कांस्टेंट स्पीड V। राइट, इसको कितना फोर्स लगाना होगा कि इसको अगर मैं यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से चलाते रहे। वैसे तो आप देखिए हो सकता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स को इसका रिजल्ट याद हो, बट अगर अपन ओवरऑल देखें तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जो रॉड मूव कर रही है वो एक मोशनल EMF उसमें जनरेट हो जाएगा, जो इस तरह की बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, जिसमें EMF जो इंड्यूस होगा मोशनल EMF दैट इज BVL, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R।
तो सर्किट में जो करंट चलेगा आई, दैट विल बी ई बाय आर इक्विवेलेंट, तो बीवीएल अपॉन आर प्लस आर इज द वैल्यू ऑफ करंट। देन फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड का उस वायर पे लगेगा, है ना, इस रॉड के अंदर जब करंट ट्रैवल करेगा तो करंट की वजह से फोर्स जो लगेगा दैट इज बी आई एल साइन 90, तो उसके हिसाब से जो फोर्स आएगा दैट विल बी बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। तो इतना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का इस रॉड पे लगेगा लेफ्ट साइड में, है ना, ये लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है। नाउ टू कीप दिस रॉड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, हमें इतना ही फोर्स इस पे राइट साइड में लगाना होगा ताकि नेट फोर्स बिकम्स जीरो, एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो एंड द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसके हिसाब से बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। तो इट्स अ रूटीन क्वेश्चन, हो सकता है आपको इसका रिजल्ट ही याद हो, तो इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, 9 नेक्स्ट क्वेश्चन में it says four very long wires are arranged as shown in the figure so that their cross section forms a square, right? अब ये हमें स्टेटस गिवन है, जो स्क्वायर बन रहा है उसका साइड लेंथ b दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट p, राइट? इस पूरे सेटअप को अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं जैसे मैंने बनाया है, यहां से ऑब्जर्व करता हूं मतलब स्क्वायर के परपेंडिकुलरली अगर मैं देखता हूं तो वो स्क्वायर जो बन रहा है ना, वो स्क्वायर हमें इस तरह का दिखाई देगा, राइट? ये स्क्वायर हमें इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से जब स्क्वायर दिखाई दिया तो आप देखिए यहां पर जो करंट होगा वो करंट हमें अंदर जाता हुआ दिखेगा, राइट? फर्दर इस वाले में जो करंट होगा वो आउटवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। यहां पर अगेन द करंट इज इनवर्ड्स एंड यहां पर करंट इज आउटवर्ड्स, और मुझे स्क्वायर के सेंटर पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब इसमें अपन राइट हैंड पाम रूल लगा के अगर चेक करें तो ये जो वायर है, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहां, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाला जो वायर है यहां पर, दिस वन, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, सिंस चारों वायर्स में करंट इक्वल है, चारों वायर्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, तो सभी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे विच इज बी। तो ये वायर डायगनली ऑपोजिट वायर्स मिलके यहां जो फील्ड बना रहे हैं वो 2b हो जाएगा। सिमिलरली ये दो डायगनली ऑपोजिट वायर्स जो हैं ये यहां पर जो फील्ड बनाएंगे वो भी 2b हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं एंगल 90 डिग्री है, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी √2 टाइम्स 2b। अब अपन इस b का वैल्यू प्लेस करें तो सिंस इनफाइनाइट वायर गिवन है तो दैट फील्ड वैल्यू इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, r जो होगा वो सेंटर से वायर तक का डिस्टेंस है, तो सेंटर से वायर का डिस्टेंस इज डायगोनल का हाफ, तो b नेट का वैल्यू इज 2√2, ठीक है, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और r की जगह मैं डायगोनल का हाफ प्लेस कर रहा हूं, दैट इज √2b अपॉन 2, राइट? तो उसके हिसाब से नेट वैल्यू जो बचेगा दैट इज 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई b। ये सब कैलकुलेशंस के बाद इट कम्स आउट एट ऑप्शन बी। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही था, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे इसको, बिकॉज जस्ट एक विजुअलाइजेशन था, डायग्राम बनाया, सेंटर पे चारों वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इंडिविजुअली, और नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिजल्टेंट से आ रहा है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? 7th क्वेश्चन में अब देखें, सुपर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड सेल्फ इंडक्टेंस L, a uniform and the constant magnetic field is applied perpendicular to the plane. Initially the current in the loop is 0, और लूप को 180 डिग्री से घुमाया तो करंट इन द लूप आफ्टर रोटेशन इज, राइट? अब सेल्फ इंडक्टेंस से जो ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो एल डी आई बाई डी टी, और फैराडे लॉ के हिसाब से शुड बी एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये अपने दोनों को इक्वेट किया। अच्छा, सिंस ये 180 डिग्री से घुमाया, एवरेज की अगर बात करें तो दिस विल बी एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एन टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फर्दर वी कैन सी डेल्टा टी तो कैंसिल हो रहा है, अब डेल्टा आई में आई फाइनल माइनस आई इनिशियल है, तो आई फाइनल मुझे निकालना है और आई इनिशियल 0 था एज पर द क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्न 1 लेना है। अब चेंज इन फ्लक्स अपन देखें तो फ्लक्स इनिशियल जो था, लेट्स से ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इनिशियल फ्लक्स विल बी बी ए कॉस 0, ठीक है, वो इनिशियल फ्लक्स इज बी ए, और फाइनल फ्लक्स जो होगा सिंस 180 से घुमा दिया तो बी और ए में एंगल 180 हो गया, तो दैट विल बी बी ए कॉस 180, तो दैट्स माइनस बी ए। तो आपका चेंज इन फ्लक्स जो आएगा मैग्नीट्यूड में वो 2 बी ए आ जाएगा,
राइट अब उसके हिसाब से मुझे करंट का वैल्यू निकालना है, तो दैट करंट का वैल्यू विल बी 2BA, दिस 2BA अपॉन L। ठीक है, एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर प्लेस करेंगे, वो रेडियस गिवन है, तो 2BA बाय L के हिसाब से दिस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपका सेल्फ इंडक्टेंस और फैराडे लॉ का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, air is filled in a bottle, atmospheric pressure is right given है, the cork can come out at a pressure 3 times atmospheric pressure, right। अब सिंस इसमें कॉर्क बाहर नहीं निकला, तो वॉल्यूम जो है जिस रीजन की बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वो कॉर्क ओपन नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब द क्वेश्चन सेज द कॉर्क विल कम आउट एट प्रेशर 3 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसके अंदर और अब प्रेशर 3 टाइम्स करना है, तो सिंस P डैश आपका 3P होना चाहिए, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो 3T होना चाहिए, तो स्ट्रेट अवे आपका फाइनल टेम्परेचर जो होगा दैट इज 3 टाइम्स द इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर इज 35 प्लस 273, ऑफ कोर्स केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से दिस कम्स आउट एज 3 टाइम्स 308, दिस 3 टाइम्स 308 इज 924, बट ये केल्विन में आया है, ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, तो इसमें से अपन 273 फर्दर माइनस कर दें तो आपका ऑप्शन सी यहां पे मिल जाता है। तो ये तो खैर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आप सिर्फ गैस लॉज अप्लाई कर रहे हो और उससे आपका टेम्परेचर वैल्यू आ रहा है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा मैंने इनिशियली कहा था क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया है। A cylindrical conductor of radius r carrying current I along the axis such that the magnetic field inside the conductor varies as B equals to B naught r square, then which of the following is incorrect? राइट, तो अब इसमें इनकरेक्ट अगर हमें ढूंढना है, तो आप देखिए जब ऐसा सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होता है और इसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, तो यूजुअल मैग्नेटिक फील्ड जो होता था, दैट मैग्नेटिक फील्ड इट यूज्ड टू बी म्यू नॉट जे आर बाई टू, बट ये म्यू नॉट जे आर बाई टू तब आता था जब आपका यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यहां पे हमें नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ प्रोपोर्शनैलिटी हैज चेंज। तो एक तो अपन अंदाजे से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो म्यू नॉट जे आर बाई टू हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता था, वो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं होगा, मैंने इनइक्वालिटी साइन लगा दिया, तो उसके हिसाब से देख रहा हूं कि जे का वैल्यू जो होगा दैट इज 2B नॉट, एक आर कैंसिल हो गया, एंड 2B नॉट आर अपॉन म्यू नॉट, इट इज 2B नॉट आर अपॉन म्यू नॉट। तो सिंस ये इनइक्वालिटी यहां पे था, तो वी कैन से दिस जे इज नॉट इक्वल्स टू 2B नॉट आर अपॉन म्यू नॉट, तो जे की वैल्यू ये नहीं होगी। तो वैसे तो क्या आप इमीडिएटली इस कैलकुलेशन से आपको मिल गया कि ये करंट डेंसिटी जे इसके इक्वल होगा, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट और हमें इनकरेक्ट ही पूछा था, तो वो अपन ऑप्शन ए सीधा ही मार्क कर सकते थे, बट स्टिल इस ऑप्शन बी अगर देखें कि करंट डेंसिटी अगर निकालनी है तो क्या करें, तो ऐसे केस में अगर मैं यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाता हूं इस सिलेंडर में और डी आर विड्थ का एक पोर्शन कंसिडर करता हूं, यूजुअल स्ट्रैटेजी, तो ऐसे केस में एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से इज बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। नाउ बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल वी कैन राइट इट एज बी नॉट टाइम्स आर स्क्वायर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, डी एल का लाइन इंटीग्रल आपका 2 पाई आर हो जाएगा, नाउ दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड अपन कैसे निकालेंगे, दैट विल बी जे इंटू डी ए का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर। भाई आई को अपन जे इंटू ए लिख सकते हैं, बट यहां स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो दिस इट कम्स आउट एज 2 पाई बी नॉट आर क्यूब, इट इज 2 पाई बी नॉट आर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, अब J इंटू डी ए लिखें तो ये एरिया एलिमेंट ऐसे केस में जो आता है 2 पाई आर डी आर, ये मैंने एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, एंड दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी 2 पाई बी नॉट आर क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा इट विल बी 3 आर स्क्वायर डी आर, और यहां पे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन रिमूव हो जाएगा, तो दैट विल बी 2 पाई जे टाइम्स म्यू नॉट आर डी आर। ठीक है, अब ये टर्म्स जो हट रहे हैं, जो कैंसिल कर दें अपन, उसके हिसाब से जे की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 3 बी नॉट आर अपॉन म्यू नॉट,
और 3b0 r अपॉन म्यू नॉट आपको यही वैल्यू ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो ये करेक्ट है। ऐसे ही सी एंड डी में भी अपन चलें तो वो उसको सॉल्व करके अपन सी एंड डी को भी करेक्ट प्रूव कर सकेंगे, बट जैसा मैंने कहा आप डायरेक्टली अंदाजे से ही फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट प्रूव कर सकते थे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही अपना आंसर हो गया, बट डेफिनेटली चारों ऑप्शन सॉल्व करने लायक हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। A ball is held at rest at position A by two light strings, राइट अब इसको जब कट कर रहे हैं, बी इसका फारदेस्ट पॉइंट है और टेंशन का रेशियो निकालना है, राइट तो रूटीन प्रॉब्लम, जब इस टेंशन इस स्ट्रिंग को कट किया जाएगा, आप देखें जब इसको कट नहीं किया था तब ए पर पॉइंट ए पे उस बॉल का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें एक टेंशन तो यहां पे आएगी, इट विल बी लेट्स से टी डैश, यहां पे एक टेंशन स्ट्रिंग से लग रहा है टी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एम जी, और यहां वर्टिकल से अपन एंगल मार्क करें तो दिस एंगल इट इज बीटा। इसका इक्विलिब्रियम लिखें अपन, सिंस ये मूव नहीं कर रहा है पॉइंट ए पे, तो दिस इज टी डैश कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से आपका एक टी डैश का वैल्यू आ जाता है, इट इज एम जी अपॉन कॉस थीटा। फर्दर जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा, अब ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है, जब स्ट्रिंग ए को कट कर दिया ये बी पे घूमता हुआ है, अब ये सर्किल में जा रहा है, तो सर्किल में जा रहा है तो इसको टी जो होगा वो अपन सेंटर की तरफ लगाएंगे, जो टेंशन इस पे लगेगा वो सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो अब ऐसे केस में सिंस ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है तो इसको अपन को सेंट्रिपिटल वाले पॉइंट से हैंडल करना होगा, तो ये टी अलोंग द स्ट्रिंग एम जी डाउनवर्ड्स, तो लेट्स से इसको अपन मार्क कर देते हैं टी डबल डैश, तो इसका इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी टी डबल डैश माइनस एम जी कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, थीटा की जगह वो एंगल बीटा ही आएगा यहाँ पे। अब सिंस बी पर स्पीड जीरो है, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, तो आपका टी डबल डैश जो आ रहा है दैट इज एम जी कॉस बीटा। अब इनको अपन डिवाइड करें, वैल्यू इन पोजिशन बी अपॉन पोजिशन ए, तो मुझे टी डबल डैश अपॉन टी डैश निकालना है, तो एम जी कैंसिल हो जाएगा एंड द रेशियो इट इज कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा जो है दैट इज योर रिजल्ट व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो ए और बी पे बस टेंशन हमें कंपेयर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज बाय साइमल्टेनियस एमिशन विथ हाफ लाइफ गिवन एज दिस, राइट तो जब साइमल्टेनियस एमिशन होता है वी नो दैट जो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ होता है दैट इज गिवन बाय T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट दिस इज द इक्विवेलेंट हाफ लाइफ जो उसका एक्सप्रेशन है। अब T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 में जब अपन डेटा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वी हैव 1620 into 810 and divided by this 1620 plus 810 when evaluated gives you a value as 540 years। ये इसकी अब नई हाफ लाइफ आई है, तो वंस वी हैव evaluated an equivalent half life तो अब उसको यूजुअल सिनेरियो की तरह सॉल्व करना है। द टाइम इन years after which 1/4 remains, अब 1/4 बचा है, इसका मतलब जो टाइम हुआ है दैट इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ, तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ मतलब 540 का डबल कर रहा हूं, तो ये 1080 इयर्स इतना टाइम इसको टूटते हुए डिसइंटीग्रेट होता हुआ है, तो ऑप्शन ए। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट नेक्स्ट में व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन अ प्लैनेट सिमिलर टू अर्थ बट मास एंड रेडियस 3 टाइम्स। ऑलराइट, तो वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है सरफेस ऑफ अ प्लैनेट पे इज gm/r²। अब मास जो है वो 3 टाइम्स करना है और रेडियस भी 3 टाइम्स करना है, तो इफेक्टिवली जो वैल्यू बचेगा वो g0/3 आ जाएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में r² है तो 9 का फैक्टर आएगा, तो g0/3। नाउ वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इट्स 2 पाई √L/g के हिसाब से आपका टाइम पीरियड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 1/3 हुआ है तो आपका t डैश जो होगा वो √3 टाइम्स होना चाहिए एज पर दिस प्रोपोर्शनैलिटी। सेकेंड पेंडुलम है तो एक्चुअल टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, तो उसके हिसाब से आपका नया टाइम पीरियड विल बी दिस √3 टाइम्स 2 सेकेंड्स, तो ये 2√3 सेकेंड्स आ जाएगा। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। राइट नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट इट सेज ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो और इसका स्लोप हमें क्या डिटेल देगा वो पता करना है। तो स्ट्रेट अवे ऐसे केस में अगर अपन आइंस्टीन इक्वेशन लिखें तो इट इज E इक्वल्स टू 5 प्लस k max, E को अपन फर्दर h न्यू इक्वल्स 5 प्लस k max को अपन लिख सकते हैं EV नॉट, तो दिस इक्वेशन इट विल बी V नॉट इक्वल्स टू h न्यू अपॉन E माइनस 5 बाई E। अब ये मेरा y एक्सिस पे है, दिस y इक्वल्स टू mx प्लस c एंड वी नो दैट c इट शुड बी द इंटरसेप्ट। तो इट सेज व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट से हम
ई तो कांस्टेंट है, तो इंटरसेप्ट से हम वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो दैट इज द सिचुएशन। ये बोल रहा है कि इंटरसेप्ट से क्या मिलेगा, तो इंटरसेप्ट से हमें वर्क फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज जस्ट कंपेरेबल विद अ स्ट्रेट लाइन। अगेन बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन है जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। A hollow sphere of mass m radius r is immersed in a tank of water. Sphere would float if it is set free, और string से उसको अपन ने टाई किया। ऑलराइट, तो जब string से टाई कर रहे हैं तो आप देखें इस स्फीयर के ऊपर सिमेट्री के वजह से अपन कह सकते हैं कि यहां पे अगर टेंशन T1 आएगा तो इधर भी टेंशन T1 ही आएगा। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल। अब चाहिए 45 डिग्री एंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी √2 टाइम्स T1। तो इस ऑब्जेक्ट के एफबीडी में इस पे √2 T1 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक mg जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे बॉयंट फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स बैलेंसिंग अगर देखें तो इट इज √2 T1 प्लस mg एंड दैट इज इक्वल्स टू FB। अच्छा, FB हो जाएगा ρL VG, तो लिक्विड का ये तो आ गया ये ρW। V इज द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पोर्शन विच इज 4/3 πr³ एंड दैट इनटू G। यहां से अपन T1 का वैल्यू निकालें तो आपको सीधा ऑप्शन में ही नजर आ रहा है कि ये कंप्लीट टर्म माइनस mg अपॉन √2, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए में वो पार्ट आपको विजिबल है, तो वो अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 4/3 πr³ ρWG माइनस mg अपॉन √2। तो ये हमें सीधा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोर्स बैलेंसिंग, बॉयंसी पर बेस्ड था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बट अगेन इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई मेन में काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो इट्स अ रूटीन क्वेश्चन। द कर्वेचर ऑफ रेडियाई ऑफ अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस आर 20 एंड 60 सेंटीमीटर। द कॉन्वेक्स सरफेस इज सिल्वर्ड, और लेंस को हॉरिजॉन्टल रखा। राइट, तो अब इसमें रूटीन डायग्राम अपन बनाए तो इस तरह का सिचुएशन है कि यहां इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा कॉन्केवो कॉन्वेक्स को, और इधर वाटर फिल किया है। राइट, अब इस जगह जब वाटर फिल करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा जहां वाटर फिल किया है वो भी अपने आप में एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट इस पोर्शन को सिल्वर किया हुआ है। तो अब ऐसे केस में वी हैव अ लेंस जो एक वाटर से बन रहा है, तो वो लेंस है, एक एक्चुअल लेंस जो था कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस वो एक लेंस है, और एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो वाटर से बनने वाला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फिर आगे बनने वाला कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है, और प्लस एक कॉन्केव मिरर है। अच्छा, ऐसे केस में द इक्विवेलेंट विल बी अ मिरर। तो यहां पर अपन देखें तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट इज इनफाइनाइट। फिर ये वाला जो सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट इज 60 सेंटीमीटर गिवन, और ये वाला जो तीसरा सरफेस बचा इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 20 सेंटीमीटर गिवन। तो अकॉर्डिंगली जब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, दिस इक्विवेलेंट विल बिहेव एज अ मिरर। तो जब मिरर की तरफ बिहेव करेगा तो आपका इक्विवेलेंट जो होता है 1/f इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2 टाइम्स 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो f1 f2 है तो लेंसेज के फोकल लेंथ आ जाएंगे, और fm जो है वो मिरर का फोकल लेंथ आ जाएगा, जो मिरर उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। राइट, नाउ अकॉर्डिंगली अपन इसमें पहले f1 f2 अगर कैलकुलेट कर लें तो जो पानी से जो लेंस बन रहा है उसका अपन f1 निकालें तो 1/f इज इक्वल्स टू n-1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 पानी का, इंटू 1/r1, तो 1/r1 तो हो जाएगा इंफिनिटी, माइनस 1/r2, r2 जो होगा दैट इज -60। तो उसके हिसाब से आपका 1/f1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 1/180। राइट, नाउ ग्लास के लिए सॉल्व करें तो 1/f2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 3/2 दे रखा है, तो दिस इज n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1, r1 जो होगा वो -60 होगा, माइनस 1/r2, r2 जो होगा दैट इज -20। इसको फर्दर सॉल्व करें, दिस कम्स आउट एज 1/60। फिर इसके बाद एक कॉन्केव मिरर बन रहा है, तो मिरर का जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी r/2। तो मिरर इस रेडियस पे बन रहा है 20 पे, और कॉन्केव है तो फोकल लेंथ शुड बी रिटन एज -10 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज मिल गई, इसको अपन वहां सब्स्टिट्यूट करें अपने उस रिजल्ट में, है ना, उसमें अपन सब्स्टिट्यूट करें
तो दिस 1 by F equivalent, when substituted this 1 by F equivalent, it comes out as minus 13 by 90, जहां से आपका F equivalent जो आएगा that will be 90 upon 13 सेंटीमीटर। वैल्यू अगर अपन देखें, सिंस ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए, और उसके हिसाब से अपन वैल्यू अगर जज करें तो इट शुड बी 90 अपॉन 13 सेंटीमीटर। तो सीधा सा क्वेश्चन था जहां पे दो लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन था और मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी थी मिरर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 16th, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब यहां पे इट सेज a right triangular plate ABC of mass m is free to rotate in the vertical plane about a fixed horizontal axis. Right, A से एक horizontal axis पास करे और ये free to rotate in the vertical plane. Reaction at support A. Right, अब support A पे मुझे reaction force निकालना है ना। इसका सिनेरियो ऐसा होगा कि अगर मैं इसमें इसका FBD बनाऊं तो इसका reaction force यहाँ पे लग रहा होगा, let's say it is in upward direction, मतलब एक तरह से नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। लेट्स से इसको मार्क कर लेता हूं मैं एज एन। इस जगह से उसको टेंशन फोर्स लग रहा होगा तो वो टेंशन फोर्स मैंने मार्क कर लिया एज टी, और सेंटर ऑफ मास पे इस पे फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड mg। अब मुझे यहाँ पे टॉर्क बैलेंसिंग करनी है। अब टॉर्क बैलेंसिंग के लिए पहले मुझे cm की लोकेशन निकालनी होगी। So if I mark this as 0, 0, this will be written as 0, L if I consider this downward direction as plus y and this direction as plus x. तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये L, 0 हो जाएगा। Now सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है ना, यहाँ पे cm का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो will be 0 plus L upon 3। तो आपका ये कोऑर्डिनेट L by 3 आ गया। या फिर अपन सेंट्रॉइड की लोकेशन निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंट्रॉइड पे होगा तो YCM जो आएगा वो भी इसके अंदर L by 3 आएगा। तो अब ऐसे केस में हम जब टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे, सिंस ये इक्विलिब्रियम में है तो द टॉर्क नेट शुड बी 0, तो उसका जो नेट टॉर्क आएगा, इस नेट टॉर्क में mg का जो टॉर्क होगा, इस mg को मैंने यहां से एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देख रहा हूं तो वो L by 3 है। तो ऐसे केस में द टॉर्क ऑफ mg इज mg इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस L by 3, और जो टेंशन के टॉर्क से बैलेंस हो रहा है, टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है तो ये इससे बैलेंस हो रहा है, तो यहां से T का वैल्यू तो mg by 3 आ रहा है। दैट इज वन रिजल्ट। Along with that इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज n plus t equals to mg। ये टेंशन अगर मैं mg by 3 यहां पे प्लेस करूं तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, रिएक्शन फोर्स जो आएगा दैट इज 2 mg by 3। तो मेनली यहाँ सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको निकालना था, टॉर्क बैलेंसिंग करनी है और फिर आपको ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स बैलेंसिंग करनी है, बिकॉज ये ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है, रोटेट भी नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपका n का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2 mg by 3 जो ऑप्शन बी में हमें गिवन है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट सेज रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलोहर्ट्ज, पावर गिवन है। राइट, सिंपल है। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड है, तो एनर्जी जो होगा दैट इज पावर इनटू टाइम। तो पावर 10 किलोवाट है, इनटू टाइम 1 सेकंड किया तो ये 10 किलो जूल हो गया। नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब दिस इज टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी तो हो गया 10 किलो जूल, तो ये 10 इंटू 10 पावर 3। H का वैल्यू अपन देखें तो इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये अपन प्लेस कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इज 880 किलोहर्ट्ज, तो 880 इंटू 10 टू द पावर 3। राइट, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इज 1.72 इंटू 10 टू द पावर 31। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें स्पेशल अप्लाई नहीं किया। नंबर ऑफ फोटोन आपने टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन से कैलकुलेट किया है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, again a very straightforward question from thermodynamics. It says refrigerator absorbs 200 calorie, coefficient of performance दे रखा है, वर्क डन निकालना है। बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग, coefficient of performance it is Q absorbed upon the electricity or the work done consumed जो एक्सटर्नल से आता है। तो यहाँ पे coefficient of performance 4 दे रखा है, Q absorbed is 2000 calorie और वर्क डन निकालना है ना। easiest question of the paper, that work done will be of course 500 calorie जो जूल्स में रिक्वायर्ड है, तो it is this 500 multiplied by this 4.2, so this is 2100 calorie is your result. Sorry, joules, 2100 joules is your result, वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन है, तो इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर जो अल्फा पर फॉर्मूले पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में YDSC पर बेस्ड है। टू स्लिट्स 0.122 मीटर अपार्ट, mm अपार्ट, लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। वी नो दैट nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
तो मुझे सेकंड ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन निकालना है, तो n की जगह 2, लैम्डा की जगह वी हैव 420 इंटू 10 टू द पावर -3, d की जगह वी हैव 1 एंड स्मॉल d की जगह वी हैव 0.12 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको अपन कैलकुलेट करें, अच्छा 420 नैनोमीटर था, सॉरी ये मैंने -9 होना चाहिए, राइट। उसके हिसाब से अपन चले तो ये जो कैलकुलेशन बनेगा इट कम्स आउट एज ये 0.6 है, ये अपन ने कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से दिस इज 70 इंटू 10 टू द पावर -4 आ रहा है, विच इज 7 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, तो दैट विल बी 7 mm। तो 7 mm जो है वो आपको ऑप्शन ए में गिवन है। अगेन फॉर्मूला पुटिंग है सीधा कि आपको ब्राइट फ्रिंज का, सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेटा सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दैट्स द रिजल्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, next question it says two uniform wires of same material are vibrating under the same tension। same material मतलब रो की वैल्यू सेम है, टेंशन इक्वल है, T बराबर है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एनटीए के पेपर्स में। तो अब यहाँ पे अपन देखें कि जो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन होता है ऐसे केसेस में स्टैंडिंग वेव बनने का, दैट इज NV/12। NV/12 में ये N/12 तो ठीक है, V की जगह वी कैन राइट T/μ। म्यू जो होता है दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, बट यहां हमें डेंसिटी रो के टर्म्स में चलना है, तो म्यू को लिख सकते हैं रो इनटू ए, ये एक्सप्रेशन। अब दोनों वायर्स में इट सेज टेंशन इज सेम, तो टी वाला जो फैक्टर है वो हट जाएगा, तो टेंशन दोनों में सेम है, मटेरियल सेम है, तो रो का फैक्टर गया, 2 का हट जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस N/L, और अंडर रूट के अंदर ये एरिया वाला फैक्टर है, तो एरिया ये पाई आर स्क्वायर होगा, उसमें पाई कांस्टेंट है वो भी हट गया, तो प्रोपोर्शनैलिटी बची सिर्फ N/LR की, ये प्रोपोर्शनैलिटी बची। नाउ द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट वायर, और ये दोनों को सीधा इक्वल करना है अपन को, तो मैं पहले वाले की फ्रीक्वेंसी और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी मुझे मैच करानी है। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब n का वैल्यू 2, तो दैट विल बी 2 टाइम्स, ये l की जगह मान लो L1, और r की जगह it says the radius of the first wire it twice of the second wire, तो सेकंड वाले का रेडियस r मान लेते हैं, तो इसका 2r हो जाएगा। और दूसरे वाले में कह रहा है सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन मतलब n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो ये 3, l की जगह L2 और इसका रेडियस r ले लेता हूं, यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, एंड वी हैव L1/L2 कमिंग आउट एज 1/3। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग वेव्स में जो आपका फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है उसका केवल आपको डिपेंडेंसी, उसका केवल प्रोपोर्शनैलिटी मैनेज करना था, तो दिस कैन बी सॉल्व्ड इन दिस वे, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A particle of mass 10 grams moves along a circle of radius इतना constant tangential acceleration, all right, fine। तो ये जेई मेन में ही इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो it says kinetic energy becomes this 8 into 10⁻⁴। तो अगर मैं kinetic energy का वैल्यू यहाँ पे मैनेज करूं, तो हाफ mv² का वैल्यू मुझे 8 into 10⁻⁴ दे रखा है, ठीक है। इसमें m का वैल्यू वी हैव 10 grams, 10 into 10⁻3, दिस v² इक्वल्स 8 into 10⁻⁴। इसको सॉल्व करें तो आपका v² का वैल्यू जो आ रहा है, दिस v² का वैल्यू इट इज कमिंग आउट एज 0.16, दैट इंप्लाइज आपका v का वैल्यू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड, तो एक तो v आ गया। अब ये कह रहा है कि सेकेंड रिवॉल्यूशन, एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन इतनी काइनेटिक एनर्जी है, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट, AT का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे केस में वी कैन, सिंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, थर्ड इक्वेशन बट सर्कुलर मोशन के फॉर्म में, तो ω² इक्वल्स टू ω0² प्लस 2 अल्फा थीटा, ये अप्लाई कर रहा हूं, जिसमें पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल ओमेगा 0 है, तो फाइनल ओमेगा को अपन लिख सकते हैं v/r, v इक्वल्स टू ओमेगा r के हिसाब से ओमेगा v/r है, तो इस विल बी v²/r²। देन फर्दर 2 अल्फा, अल्फा को लिख सकता हूं मैं AT/r, वी नो दैट AT इक्वल्स टू अल्फा होता है, और थीटा की जगह इट विल बी 4 पाई, सिंस 2 रिवॉल्यूशन हो गए तो इट इज 4 पाई, इसमें से एक r कैंसिल हो गया। नाउ दिस AT का वैल्यू इट कम्स आउट एज v²/8 पाई r, v² अपने निकाला हुआ है 0.16, राइट, 8 इंटू पाई, रेडियस की वैल्यू दे रखी 1/पाई सेंटीमीटर है, तो 1/पाई इंटू 10⁻², ये पाई कैंसिल हो गया, और ओवरऑल वैल्यू आपकी जो AT की आ रही है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर विच इज 2। तो सीधा सर्कुलर मोशन पर बेस्ड था, अपने इक्वेशन अप्लाई की और AT का वैल्यू उसमें निकाल लिया। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
राइट, क्वेश्चन नंबर 22 जैसे मैंने कहा था, इट्स अ गुड क्वेश्चन गिवन हियर. A point source of light of power P naught is placed at a distance 4 meter from the center of the thin hemispherical shell as shown in figure. तो वो फिगर इसमें गिवन नहीं है. तो अब इस केस में वी आर गिवन दैट ऐसा एक हेमिस्फेरिकल शेल है और हमें इससे एक सर्टेन हाइट पे 4 मीटर ये हाइट हमें बता रखा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये एक सोर्स रखा पी नॉट का, जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 4 और इसका खुद का रेडियस जो है, दिस डिस्टेंस इट इज 3. ठीक है. द शेल हैज रेडियस गिवन, इट इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. तो इसका ई जो होगा वो 1 हो जाएगा. टेम्परेचर ऑफ द हेमिस्फीयर इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ द सोर्स एज गिवन. तो हमें वैल्यू ऑफ n/10 निकालना है. ऑलराइट, नाउ अब ऐसे केस में अगर अपन रेडिएटेड पावर, सिंस ये स्फीयर का टेम्परेचर T है, तो इसका रेडिएटेड पावर अगर अपन देखें तो वी नो दैट पावर रेडिएटेड इज सिग्मा E A T टू द पावर 4. तो सिग्मा तो कांस्टेंट आ गया, E 1 रखेंगे. अब जितने एरिया में से ये टोटल रेडिएट करेगा, वो चीज यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि अगर ये सिर्फ अपने सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया से रेडिएट कर रहा है, तब तो यहां पे सिर्फ कंप्लीट स्फीयर का आधा एरिया आना चाहिए, 2πr². और अगर वो इस वाले सरफेस को भी कवर किया हुआ है जो मेंशन नहीं है ना, बट आंसर आपका इसी फॉर्मेट में आएगा कि इसको भी कवर्ड माना है. तो इसको कवर माना है तो ये वाला एरिया होगा πr², ये भी ऐड हो गया, एंड दैट इनटू T टू द पावर 4. तो दैट गिव्स यू 3πr² सिग्मा T टू द पावर 4 एज द P रेडिएटेड. अब इसके बाद हमें P रिसीव्ड निकालना है. जब P रिसीव्ड निकालेंगे तो P रिसीव्ड सिर्फ इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हो रहा है, आप देखो. ठीक है, यहां पर ये पॉइंट है P नॉट वाला और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में रिसीव हो रहा है. तो यहां पर सिंस वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एक सॉलिड एंगल बन रहा है पूरा. ठीक है, जिसमें ये जो डिस्टेंस है ये 4 गिवन है, ये वाला डिस्टेंस आपको 3 गिवन है. तो ये जो हाइट आएगी दैट विल बी 5. तो उसके हिसाब से आपका जो सॉलिड एंगल यहां पे बनेगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अपन निकाल लें, देयर इज 2π इंटू 1 माइनस cos 37 डिग्री. ठीक है, ये उसके हिसाब से दैट वैल्यू विल बी 2π/5. राइट, तो ये सॉलिड एंगल आ गया. अब अगर हम P रिसीव्ड देखें, जो P रिसीव्ड है, जो P इन है, वो टोटल का कितना फ्रैक्शन है, बिकॉज यहां पे सॉलिड एंगल 2π/5 ही है, जबकि टोटल सॉलिड एंगल आपका 4π होता है. तो जो टोटल रेडिएट हुआ उसका इतना फ्रैक्शन इसके अंदर आ रहा है. तो ये वैल्यू जो आ रहा है, दिस इज P0/10. तो P0/10 रिसीव हो रहा है, और सिंस ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसके हिसाब से अपन ये P0/10 को उस रेडिएटेड वैल्यू से इक्वेट करें तो 3πr² सिग्मा T टू द पावर 4. यहां से T टू द पावर 4 का मुझे वैल्यू निकालना है, इट इज P0/30πr² सिग्मा. R की वैल्यू 3 प्लेस कर दें, 3 स्क्वायर 9 3 27. तो यहां से 270, ये n की वैल्यू 270 आ रही है, और क्वेश्चन ने मुझे n/10 का वैल्यू पूछा है, तो n/10 का वैल्यू आपका 27 आ जाएगा. बट 27 तब जब हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाले सरफेस को क्लोज किया और वहां से भी रेडिएशन हो रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन जस्ट 2πr² हियर. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें आप सॉलिड एंगल भी यूज कर पाए हैं और हीट ट्रांसफर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी, राइट. तो ये तो आपको स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है कि यहां से इसको प्रोजेक्ट किया, ये यहां पे लैंड किया. फ्रॉम व्हाट हाइट डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से किस हाइट पे, वो नहीं बताया कि किस हाइट पे. राइट, यहां से किस हाइट से एक पार्टिकल को हमें प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, so that both of them collide when one strikes the ground. तो ये यहां पे आके लैंड करना चाहिए. तो दोनों यहां पे लैंड कर रहे हैं, वो कोलिजन तभी होगा जब दोनों वहां साथ में पहुंचे. तो दोनों का टाइम मैच करना चाहिए. तो अगर अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रूटीन टाइम जो होता है 2u sin θ/g, वो अपन निकाल सकते हैं. तो 2u sin θ/g में u 10 दे रखा है, ये g कैंसिल हो जाएगा, √3/2. राइट, तो ये बच रहा है √3 सेकेंड्स. तो पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड तक पहुंचने का √3 सेकेंड्स है. और राइट, दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, वो उतने ही टाइम में ग्राउंड तक पहुंच जाना चाहिए. तो फॉर द सेकेंड वन वी नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल में, 2h/g अंडर रूट.
तो यहां से आपका h का वैल्यू जो है वो GT2 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, जिसमें g अपन 10 प्लेस कर दें, टाइम जो है वो √3 ही होना चाहिए, दिस इज 3/2, तो दिस कम्स आउट एज 15 मीटर्स। ये h की वैल्यू आपकी 15 मीटर्स यहां से आ रही है, दिस इज दिस ऑप्शन। तो दोनों का टाइम मैच करना था बस, एक हॉरिजॉन्टली थ्रोन है और एक यूजुअल प्रोजेक्टाइल है जहां से आपका आंसर 15 मीटर्स आ रहा है। सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, next question में it says a particle moves along a straight line with a variable acceleration. Variable acceleration में AS curve दिया, right? AT curve नहीं है, AS curve है. Determine the velocity of the particle, right? तो अब ऐसे केस में अगर अपन area of this curve देखेंगे, right? This area will be A ds का इंटीग्रेशन, वैसे तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होगा बट बता देता हूं। A ds का इंटीग्रेशन, A को लिख सकते हैं अपन V dv अपॉन ds, एक्सेलरेशन को v dv by ds लिखा तो ये ds ds कैंसिल हो गया, एंड वी हैव v dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v। तो इसका जब एरिया कैलकुलेट होगा तो दैट एरिया विल गिव यू v स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और वो एरिया है आपका हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गया 30, स्टैंडर्ड यूनिट्स ही है ऑलरेडी, राइट। तो अब v स्क्वायर माइनस u का वैल्यू इट इज 10, स्क्वायर किया 100 अपॉन 2, दिस कम्स आउट एज 150। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आपकी 400 आ रही है, एंड सिंपली v की वैल्यू इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपका आंसर इसमें 20 आ रहा है। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, लास्ट क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी गिवन, फोर्स गिवन है, इंस्टैंटेनियस पावर। बिल्कुल फॉर्मूला बटिंग क्वेश्चन है, वी नो दैट इंस्टैंटेनियस पावर जो होता है, सॉरी स्केलर होगा, इंस्टैंटेनियस पावर जो होता है दैट इज f वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो f डॉट v कर रहे हैं, x विद x मल्टीप्लाई किया, वी हैव 40 माइनस 6 माइनस 4, दिस वैल्यू कम्स आउट एज 30 वॉट। तो ये आपका इंस्टैंटेनियस पावर आ गया। तो जैसा मैंने कहा था, दिस ओवरऑल पेपर रेटिंग इट इज इजी। मेरे ख्याल से सोल्यूशन वगैरह डिस्कस देखने के बाद आप भी कहेंगे कि पेपर इजी था, बस इजी क्वेश्चन, इजी पेपर, बट 4 क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। तो ओवरऑल 65 to 70 marks is a good score in this paper. All right, students, we come to the end of the discussion. So keep learning, keep working hard, stay motivated. You can and you will. Thank you.